Hello dear students, welcome to ASMC Maths classes. This is today we are going to discuss JEE Advanced 2022 solution paper 1 and question 1 and 2 specifically. Myself engineer Aniket Sood, director ASMC Chandigarh, and I am having a teaching experience of 13 years and more even now. So we are going to see the very first section of this JEE Advanced paper. This section contains 8 questions and the answer to each question is a numerical value. Okay. For each question, enter the correct numerical value using the mouse and on-screen virtual numeric keypad in the place designated to enter the answer. ये instruction दिया गया था. If the numerical value has more than 2 decimal places, truncate or round off the value to 2 decimal places. यानी कि अगर हमारे पास कोई आंसर इस तरीके का आएगा 2.017 तो हम इसे राउंड ऑफ करके क्या कह सकते हैं 2.02. I hope that is clear to all of you. एंड यस डेफिनेटली इसमें मार्क्स मिलेंगे +3 अगर करेक्ट आंसर देंगे, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी थी आईआईटी ने. दैट वाज 0 इन ऑल द अदर केसेस. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज. We can see considering only the principal values of inverse trigonometric function they are talking about, and the value of this thing 3/2 cos inverse under root 2 upon 2 plus pi square and plus 1/4 sin inverse 2 root 2 pi upon 2 plus pi square plus tan inverse of root 2 by pi, इसका वैल्यू निकालना था. अगर हम इसका वैल्यू निकालने के बारे में देखें तो हम इसे सिंपली ट्रायंगल वाली अप्रोच से कर सकते थे. जैसे कि अगर हम सबसे पहले वाले cos इनवर्स को एज्यूम कर लेंगे वो थीटा है. सो लेट्स से दिस ऑल cos इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू थीटा. So we know that cos is base upon hypotenuse. So this is base, this is hypotenuse under root 2 plus pi square. Okay. And this is perpendicular. Perpendicular is going to be hypotenuse ka square, that is 2 plus pi square and minus 2. So 2 and 2 will get cancelled. So this is nothing but only pi. And the next thing is if this is theta. So can we convert first of all this to the tan? Yes, of course. तो ये tan में कैसे convert हो जाएगा? This is equal to 3/2 tan inverse pi upon root 2. The next thing is 1/4 sin inverse. देखिए हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे, पर सबसे पहले एक तो सबको tan इनवर्स में वी कैन कन्वर्ट. तो सबसे पहले अगर हम लास्ट पार्ट को देखें, दैट इज tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 2 by pi. So from here what we remember is the identity tan inverse x plus cot inverse x, that is pi by 2. तो इसमें से एक हम उठा सकते हैं tan inverse pi by root 2 और वो tan inverse 2 by root pi. tan inverse pi by root 2 is cot inverse pi by root 2 by pi as well. तो वो प्लस tan इनवर्स रूट 2 by pi मिलके pi by 2 बन जाएगा और फिर हाफ इसमें से और रह जाएगा. तो हाफ tan इनवर्स ऑफ अंडर pi by root 2 सिर्फ ये रह जाएगा और बाकी का तो tan इनवर्स रूट 2 by pi के साथ मिलके कितना दे देगा हमें, pi by 2 दे देगा. ऑलराइट. एंड इसके बाद हमारे पास जो बचता है दैट इज दिस थिंग, बिकॉज ये लास्ट वाला तो मैंने लगा दिया यहाँ पे, दैट इज साइन इनवर्स वाला. साइन इनवर्स वाला में अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसको सबसे पहले तो इसको भी कोई अल्फा मान के अगर हम सिंपलीफाई कर लें, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं तो वी कैन हैव एन अल्फा ओवर हियर. दिस इज 2 root 2 pi and hypotenuse is 2 plus pi square and बेस हमारा जो आ जाएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 plus pi square का स्क्वायर माइनस 8 pi स्क्वायर. तो ये हमारे पास क्या बन जाता है अगर हम इसे सिंपलीफाई करें, 2 plus pi square का स्क्वायर दैट इज 4 plus pi power 4 plus 4 pi square minus 8 pi square. तो वो प्लस 4 pi square minus 8 pi square minus 4 pi square दे देगा, जिससे हमें 2 minus pi square का होल स्क्वायर ही बन जाएगा, जो कि स्क्वायर रूट से बाहर आके 2 minus pi square हो सकता है, लेकिन वो नेगेटिव हो सकता है, इसलिए हम उसको pi square minus 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो वो जैसा भी हो सकता है. वो तो pi square minus 2 का होल स्क्वायर भी हो सकता है, 2 minus pi square का भी होल स्क्वायर हो सकता है, जो वैल्यू मैंने अभी आपको बोली. सो डेफिनेटली हम इसको क्या लिखना चाहेंगे, प्लस 1/4 ऑफ tan में लिखेंगे हम इसे, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 2 root 2 pi डिवाइड बाय pi square minus 2. अब बेटे ये हमारे पास 2 root 2 pi upon pi square minus 2,
यहाँ से हम कैसे कर सकते हैं इसे अप्रोच? अगर हम देखें कि tan √2 बाई पाई है, tan पाई बाय √2 जैसे वहां लिखा है, तो इसे पाई बाय √2 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये नीचे वाले को हम क्या कैसे देख सकते हैं कि अगर हम देखिए इसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझे, तो ये इसकी हम सेटिंग कर सकते हैं। जैसे पाई बाय √2 tan 2x है ना, tan 2 टाइम्स पाई बाय √2 हो जाएगा ये, और नीचे बन जाएगा पाई बाय √1 माइनस, बेसिकली हम इसे 2 बाय पाई की तरह देख सकते हैं, 2 टाइम्स √2 बाय पाई, और नीचे हमारे पास 1 माइनस √2 बाय पाई का होल स्क्वायर। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? आई थिंक आप अगर इसे देखें सिंप्लीफाई करके सेम बनेगा, ये 2 √2 पाई अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 2, हाँ ये सेम बनता है। तो ये tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाता है, जो कि हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/4 ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ x। x की जगह पे यहाँ क्या आएगा, √2 बाय पाई। ओके बच्चों, तो ये इससे कट गया। अब हम देख पा रहे हैं कि पहला और लास्ट टर्म में कोफिशिएंट सेम है 1/2, एंड अंदर फिर से उल्टा सीधा लिखा है tan इनवर्स पाई बाय √2, और लास्ट में लिखा है tan इनवर्स √2 बाय पाई। लास्ट वाले tan इनवर्स √2 बाय पाई को cot इनवर्स पाई बाय √2 हम मान सकते हैं, और हाफ को कॉमन लेके फिर से क्या जनरेट हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, जिसका आंसर क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। ऑलराइट, एंड उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, फिर से पाई बाय 2 ऐड कर देंगे। तो ये आंसर हमारे पास कितना बन जाएगा, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 2। पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 2 कितना बन जाएगा, 3 पाई बाय 4। इस 3 पाई बाय 4 से अगर हम पाई की वैल्यू इसमें लगा के देखें 3.14, तो 3.14 इंटू 3 9.42 आ जाता है, 9.42 अपॉन 4, जो कि राउंड ऑफ देके हमें कितना दे देता है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2.35। 2.35 से 2.36 के बीच में हम इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। तो 2.35 अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आ रहा है, तो ये राउंड ऑफ करके हम इसका आंसर दे सकते थे। तो दिस वाज दिस क्वेश्चन, आई विल रेट इट एज एन इजी क्वेश्चन। सीधे सीधे तरीके से फॉर्मूले लगा के हो गया ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर हम देखें तो ये भी मेरे को इतना टफ नहीं लग रहा है, तो इट इज नॉट फ्रॉम दैट टफ कैटेगरी। एंड एक बार आप खुद देखेंगे, अल्फा बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, एफ मैप्स फ्रॉम आर टू रियल टू रियल, एंड जी मैप्स फ्रॉम अल्फा कॉमा इंफिनिटी टू रियल, बी द फंक्शंस डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू sin pi x by 12 and g of x equal to 2 log natural log under root x minus alpha upon natural log e power under root x minus e power root alpha, then the value of limit x approaches to alpha positive f of g of x। कॉम्पोजिशन फंक्शन पे लिमिट पूछी है, यहाँ पे ऑब्वियसली वो लिमिट सबसे पहले g पे हमें लेके जानी होगी। g की लिमिट हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि g की लिमिट में अगर हम x को अल्फा लगा देते हैं, तो ये log ऑफ 0 अपॉन log ऑफ 0 बन जाता है, विच इज माइनस इन्फिनिटी बाय नेगेटिव इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आती है, तो लॉपिटल हम यहाँ पे इजीली देख पाते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू अल्फा पे अगर हम देखें g ऑफ x, तो वो हमें क्या देते हैं आंसर, दैट इज अगर लॉपिटल लगा रहे हैं 2, तो दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू अल्फा में ही हमारे पास रहेगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू अल्फा हम देख पाते हैं 2 टाइम्स 1/2 √x, और उसका तो 0 ही हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, और ओके हमारे पास मल्टीप्लाई बाय लॉग का डिफरेंशिएशन 1/√x माइनस रूट अल्फा भी रहेगा, और नीचे भी ऐसे ही लॉग का हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/e⁻√x माइनस e⁻√अल्फा इंटू e⁻√x की फिर से क्या आ जाएगी, e⁻√x इंटू 1/2√x। ये 1/2√x तो कट जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, हाँ e⁻, इसमें से हम क्या ले सकते हैं, नीचे वाले में से e⁻ हम ले सकते हैं कॉमन, e⁻√x हम कॉमन ले सकते हैं, और e⁻√अल्फा कॉमन ले सकते हैं। तो 2 तो पहले ही हमारा बाहर आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू अल्फा, एंड दिस इज 1/√x माइनस √अल्फा इंटू e⁻, अगर √अल्फा को हम क्या ले लेते हैं कॉमन, तो e⁻√x माइनस √अल्फा -1 आ जाता है हमारे पास। ठीक है बच्चों, एंड अगर हम देखें कि e⁻√x माइनस √अल्फा, तो ऑब्वियसली वो 0 0 e⁻0 -1 अपॉन ये 0 पड़ा है, तो उसका आंसर तो 1 आ जाएगा।
ओके। और नीचे एक ई पार अंडर रूट एक्स अभी भी है हमारे पास अपॉन ई पार अंडर रूट एक्स, वो भी ई पार अंडर रूट अल्फा ही बन जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा और वो उसके साथ 1 बन गया। तो इसका आंसर सिर्फ ये 2 बच जाएगा हमारे पास। एंड फाइनली एफ के अंदर अब ये हमने, क्योंकि एफ के अंदर जी ऑफ एक्स है, तो इसके बाद हमें एफ के अंदर ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो कि 2 है वो लगानी है। तो वो हमारे पास क्या आंसर दे देगा, एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ 2 से हमारे पास आंसर आ जाएगा साइन पाई बाय 6, जो कि कितना होता है 1/2। तो इसका आंसर हम कितना बना पा सकते हैं राउंड ऑफ करके, ऑब्वियसली 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये पहले दोनों क्वेश्चन थोड़े इजी लगे होंगे। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेके आते रहेंगे जैसे जैसे हमें टाइम मिलता रहेगा, एंड वी विल बी कंटिन्यूसली इन टच विद यू। एंड बाय द टाइम यू कैन लेट अस नो कि आपको ये 2 सॉल्यूशन कैसे लगे। एंड कीप ऑन प्रिपेयरिंग फॉर योर IIT JEE 2023। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।